A very good evening to all. I welcome you all in this online lecture on existentialism with a special reference to Jean-Paul Sartre. I'm very happy that today we have with us Dr. Prashant Shukla sir from the Department of Philosophy, University of Lucknow as the speaker. I welcome you, sir, on behalf of the Department of Political Science, Vasanta College for Women, Rajghat. Uh, this today, the date which we have chosen for this lecture happened to be a very unique combination. Since morning, we are engaged with the political discussion, who is making government, who is getting how many votes. But this evening is for philosophy. And this evening, sir will be discussing one of the most important philosophies of modern times, which places man and his problems at the center and engages with not only the idea of man but the concrete living individual in his actual preoccupation with himself and the world. Today, Dr. Shukla will be discussing in his lecture general features of existentialism, and obviously the focus will be on Jean-Paul Sartre. Before inviting Dr. Shukla, I'd like to present a brief introduction about him. Dr. Prashant Shukla is presently working as the Assistant Professor of Philosophy at University of Lucknow, and he is also presently visiting faculty of BITS Pilani for symbolic logic. Before joining University of Lucknow, he has also worked in Stephens College, University of Delhi, and Hindu College, University of Delhi, as the Faculty of Philosophy from 2008 to 10. Dr. Shukla has completed his doctoral research on postmodern philosophy from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in 2006, and he has also completed his postdoctoral research on classical Greek philosophy from University of Athens, Greece in 2008. He has also been recipient of many prestigious awards and fellowship, both national as well as international. To name a few, he has been a recipient of International Greek Government Scholarship 2006. His area of interest include Greek philosophy, postmodernism, and logic. Sir has contributed to academics immensely through his writings. He has published about 8 research papers and co-authored more than 9 books. Some of his books are also prescribed as text by the Directorate of Distance Education, Tripura University, Vinoba Bhave University, and Jamia Millia University. He has also coordinated national workshops and seminars under the sponsorship of ICPR. So we are really very fortunate to have you with us, sir. And now, without taking much time, I'd like to invite Dr. Shukla for his lecture. Over to you, sir. Thank you for your kind words, ma'am. I hope I will be able to justify what you have said here. And it's an honor to be able to be a part of the discussion in Vasanta College, a very prestigious college and a very prestigious department of yours. So I really consider it as a privilege to discuss some of the humble findings of mine with you people. Now, the moment we think about existentialism, of course, as you have rightly said, it is one of the most popular theories or perspective of the modern times. In fact, what we have seen is that I guess I should be bilingual in the class. Yeah, Please, because the students are from both Hindi and English medium. yeah. तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इट ऑलवेज हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कि जब भी हमारे स्टूडेंट्स पीएचडी में एनरोल होते हैं तो दे आर ऑलवेज अटैच्ड और अट्रैक्टेड बाय वन ऑफ द टू थिंकर्स. Either most of the students who come to us as scholars, they prefer to work on Marx or they go to Sartre. The reasons are quite obvious because these thoughts and the doctrines supplemented by the peripheral issues of existentialism seem quite attractive to the fresh minds in academia. So it is quite obvious that existentialism functions like a magnet
for most of the students, particularly in humanities and social science. Now, there is one more thing which I have seen over a couple of years. Now, whether you talk about Marxism or you talk about existentialism, the kind of fetish we have for these kind of ideologies is not sustained for quite a considerable period of time. मतलब शुरू में हर कोई सार्थ के ऊपर, क्रिकेगार्ड के ऊपर, यास्पर्स के ऊपर, नीचे के ऊपर या फिर एंगल्स के ऊपर काम करना चाहता है, लेकिन कुछ सालों के बाद हम लोग देखते हैं कि इसके प्रति जो उनका आकर्षण है, जो उन्हें मंत्रमुग्ध कर देता है, वो धीरे धीरे क्षरित होने लगता है, डाइल्यूट होने लगता है. The reason is this, as we all know, and I would like to start with this particular point. There has always been some sort of dichotomy between purity and popularity of the discipline. I mean, once you come to academics, we learn the theories, tools, and techniques of any particular discipline you are attached with, maybe political science, archaeology, philosophy, psychology, and we want to stick to that particular tool or technique so as to make our conceptual analysis. And sometimes it looks like a very tedious task to us. हमें लगता है कि इन टूल्स और टेक्निक से जुड़ा रहना काफी हद तक हमें बोझिल और उबाऊ लगने लगता है. ऐसे वातावरण में हम पाते हैं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म कम्स लाइक अ फ्रेश वेव ऑफ पर्सपेक्टिव टू अस. We get attracted to that. Is it a good thing or is it a bad thing? Well, my response would be yes and no, both at the same time. Because like all other ideologies, like all other isms, existentialism has got its advantages as well as disadvantages. Because it has always been a dilemma of academia that we are not able to merge purity with popularity. If you are pure, you want to be radically associated with tools and techniques. Maybe you will give a kind of dry, rigorous, and ascetic kind of presentation, which is, of course, not there for the layman. These are for the hardcore trained academicians. जैसा कि हमारी पीएचडी के साथ होता है. तो जब हम लोग अपनी पीएचडी लिखते हैं या सुपरवाइज करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी पीएचडी किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि उस डिसिप्लिन के ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स के लिए है, जिन्हें उस पर्टिकुलर फील्ड के टूल्स, टेक्निक्स और थ्योरीज के बारे में भली भांति जानकारी है. लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब हम लोग अपनी पीएचडी को पब्लिश कराने के लिए जाते हैं, बुक के फॉर्म में देते हैं, सो द आइडियल सिनेरियो वुड बी टू मेक इट एज सिंपल एंड एज ल्यूसिड एज पॉसिबल. तो हम अपनी भाषा को सरल, सहज, प्रवाहमय, बोधगम्य कर लेते हैं. हम अपनी तकनीकों का सरलीकरण कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से कि आपके द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक एक टेक्निकल स्कॉलर तो पढ़ ही सके, लेकिन आम लोगों के लिए भी उसमें कुछ ना कुछ मौजूद है. वो देयर मस्ट बी सम टेक अवे फॉर दोज पीपल एज वेल. सो अगर हम लोग इस दृष्टिकोण से देखें तो योर पीएचडी शोज द प्योरिटी ऑफ द डिसिप्लिन, बट द बुक्स यू पब्लिश आर मोर और लेस फॉर द पॉपुलर ओरिएंटेशन. और ऐसा तकरीबन हर आइडियोलॉजी, हर इज्म या हर वाद में पाया जाता है. और हमको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है. हम बौद्ध फिलॉसफी और रिलीजन का रेफरेंस ले सकते हैं जस्ट टू मेक द कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी ऑफ द इश्यू इजियर. तो शुरुआत तो हम लोग हिनयान के साथ करते हैं, जो कि प्योरली टेक्निकल डिस्कशन पे फोकस करता है. बट देन यू वांट टू हैव एज मेनी फॉलोअर्स एज पॉसिबल. तो हम बाद में अपनी डॉक्ट्रिन्स को, अपनी थ्योरीज को छोड़ते तो नहीं हैं, लेकिन उनको थोड़ा सरल बना देते हैं. We make them as flexible as possible so that the layman can also get associated, can get some takeaway from that particular ideology. और इसी तरह से हमारे पास महायान का जन्म होता है.
और अगर हम लोग न्याय को भी देखें तो न्याय के बाद नव्य न्याय दर्शन कुछ इसी प्रकार के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ता है। अगर पाश्चात्य संदर्भ में देखें तो अर्ली ग्रीक फिलॉसफी जो सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल के क्लासिकल टाइम तक होती है। नाउ दिस इज अ हार्डकोर टेक्निकल cosmogonical and metaphysical discussion. But then let us admit these are not the popular philosophers. मतलब आपने सोक्रेटिस और प्लेटो का नाम निश्चित तौर पे सुना है और पढ़ा भी है, लेकिन उसके पहले कितने चिंतकों को हम लोग जानते हैं, जबकि उससे पहले तकरीबन 300 सालों का इतिहास रहा है। We have Thales, Anaximander, Anaximenes, Pythagoras, Heraclitus, Democritus, Leucippus, and so on. But the point is that they are doing something which requires tools and techniques of the discipline. But then later on, जिसको हम लोग पोस्ट सोक्रेटिक या पोस्ट एरिस्टोटेलियन फिलोसफी कह करके बुलाते हैं, यहां के दार्शनिकों ने चीजों को सरल कर दिया, जैसे एपिक्यूरियंस, स्टोइक्स, मार्कस ऑरेलियस एंड सो ऑन, और इसी वजह से ये लोकप्रिय चिंतक बन पाए। तो हमने देखा कि जब आप प्योरिटी की तरफ झुकाव रखते हो तो पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है, एंड वाइस वर्सा। हम किसको चुने? वेल, द आइडियल पर्सपेक्टिव ऑफ एन एकेडमिशियन शुड बी टू मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ मर्जर बिटवीन द टू, जहां पे हम अपने टेक्निकल पर्सपेक्टिव को ना छोड़ते हुए एक पॉपुलर पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट कर पाए। और मुझे लगता है इसमें सबसे बेहतर सफलता हमें एग्जिस्टेंशियलिज्म या अस्तित्ववाद के रूप में प्राप्त होती है। जैसा कि हमको पता है, ये जो एग्जिस्टेंशियल थिंकर हैं, जिनका जन्म तकरीबन 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में होता है, वैसे शुरुआत तो पहले से हो रही है, लेकिन इसका पॉपुलराइज्ड वर्जन हमको फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में मिलता है, और इसके अपने कुछ कॉन्टेक्स्ट, अपने कुछ संदर्भ और सरोकार रहे। हमारे मनस में तुरंत विचार आते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, हम सोचते हैं रेनेसा और एनलाइटनमेंट के बारे में, हम सोचते हैं सम relatively newer issues like that of liberty, equality, fraternity, justice, democracy, rights, even pertaining to not only women rights, but also the fittest right. So you can see we are doing the job in relation to such issues which pertain to the concern of the layman. That is why हमने देखा कि ये दार्शनिक कहीं ज्यादा लोकप्रिय और चर्चित भी हो गए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यही वजह है कि जब भी कोई स्कॉलर एक पीएचडी के टॉपिक को चुनने का प्रयास करता है तो उनकी प्रमुख और प्रथम चुनाव या तो सार्थ के रूप में होता है या फिर मार्क्स के रूप में होता है। अब मार्क्स के बारे में हम लोग ने उनकी जो बेसिक थ्योरीज हैं वो निश्चित तौर पे पढ़ी होंगी, बहुत सारी किताबों में उपलब्ध भी हो जाती हैं, लेकिन मेरा सरोकार यहाँ पे कुछ इस प्रकार का है कि मैं आपको एक एंथोलॉजिकल व्यू दे पाऊं। आई वुड लाइक टू गिव अ हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाई एंड हाउ existentialism comes into the limelight, what were the prominent thinkers, whether they claimed themselves to be existentialist or not, क्या वो स्वयं को एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहते थे या हमने उनको एग्जिस्टेंशियलिज्म का नाम, एग्जिस्टेंशियलिज्म का लेबल चस्पा किया हुआ है। तो ये हमको गौर करना पड़ेगा। मार्क्स स्वयं को मार्क्सवादी नहीं कह सकते, कुछ इसी प्रकार जिस तरह से रसेल कभी भी नहीं कहते थे कि वो एक एनालिटिकल फिलोसोफर या एनालिटिकल थिंकर हैं। ये उनके बाद में आने वाली पीढ़ी या उनके बाद के थिंकर्स की जनरेशन ने उनको एक अम्ब्रेला टर्म दे दिया है, जिसको हम लोग मार्क्सिज्म, एनालिटिकल फिलोसफर्स, एग्जिस्टेंशियलिस्ट, फिनोमेनोलॉजिस्ट या अलग अलग नाम से जानने का प्रयास करते हैं। तो ये बड़ा ही रुचिकर सी बात है कि वी हैव क्लब टुगेदर अ लॉट ऑफ थिंकर्स अंडर द ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म existentialism, but it does not mean that all of the thinkers were
agreeing with each other on the issues they were discussing. तो हम पाते हैं कि ये सारे चिंतक कई बार अलग अलग दिशाओं में जाते हुए दिखाई देते हैं, अलग अलग मुद्दों से सरोकार रखते हैं और अलग अलग प्रकार के समाधान भी देने का प्रयास करते हैं. आज के प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि कई चिंतक सेमिटिक हैं और कई एंटी सेमिटिक हैं, कई रिलीजियस हैं और कुछ एंटी रिलीजन भी हैं, कुछ साइंस को सपोर्ट करते हैं तो कुछ सोशल साइंस को सपोर्ट करते हैं. तो हम इन सबको अस्तित्ववाद के अंदर रखने का प्रयास भला क्यों कर रहे हैं? शायद इसलिए कि इन सब के अंदर एक पर्सपेक्टिव, एक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से हमारे सामने आता है. दे वॉन्ट टू अपोज द एलियनेशन ऑफ द डिसिप्लिन, यानी वो अपने डिसिप्लिन को बाकी सरोकारों से अलग रखकर नहीं देखना चाहते. आप सबको पता होगा कि जब हम लोग रसेल, एन व्हाइटहेड, क्वाइन, पियर्स, स्ट्रॉसन, फ्रेगर जैसे लोगों की बात करते हैं तो उनके ऊपर कभी कभी अभियोग लगता है कि these are just like the blind people who are searching for a black cat in a dark room. यानी वो कुछ ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं जिसका समाज के साथ कोई भी संदर्भ नहीं है. और बहुत लोग ये अभियोग भी लगाते हैं, आपके कहे गए कथन, आपके सिद्धांतों, आपके तकनीक की प्रासंगिकता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, what is the relevance of doing such thinking. Now, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं क्योंकि हर विषय में प्रासंगिकता खोजना मुझे किसी भी प्रकार से रुचिकर नहीं लगता. Let us presume as a sort of thought experiment, हम सब ने बचपन में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, हमने sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू tan थीटा सीखा, हमने मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल देखी, हमने स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू निकालने की टेक्निक को सीखी. क्या हमने कभी भी इसका अपने सामाजिक जीवन में इस्तेमाल किया? क्या हमने इसका प्रयोग किया है? हम लोग ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में सीखा, हमने नील बोर को पढ़ा, हमने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़े. हम में से कितने आम लोग इन प्रिंसिपल का अपने सामान्य जीवन में इस्तेमाल करते हैं? उत्तर होगा नहीं. तो क्या ये सिद्धांत, ये टूल्स और टेक्निक्स अप्रासंगिक और अनुपयोगी मान लिए जाएं? उत्तर फिर भी होगा नहीं. क्योंकि जब भी कोई एकेडमिशियन किसी थ्योरी को डेवलप करता है, किसी टेक्निक को डेवलप करता है, तो उसकी प्रासंगिकता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन इस बात से आप उस पूरे के पूरे डिसिप्लिन, पूरी की पूरी विधा को नकार नहीं सकते हैं. When an academician searches for some theory, so I believe, and I'm using the terms as used by Wilfred Sellers, तो एक एकेडमिशियन एक सुडोकू का गेम खेल रहा होता है. तो अगर आप सुबह उठे और उठते ही आपने न्यूज़पेपर में वो सुडोकू का गेम खोला और आपने पेन लेकर के उस पजल को सॉल्व करना शुरू कर दिया और मम्मी ने आपसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, इससे आपको क्या उपयोगिता होगी, इससे क्या लाभ मिलेगा, क्या इसमें कोई प्राइज मनी है, क्या इससे आपको कोई डेजिग्नेशन मिलेगी, क्या आप कोई एग्जामिनेशन क्रैक करोगे, तो शायद आपका उत्तर होगा कि बिल्कुल नहीं. लेकिन मैं सुडोकू का गेम शायद इसलिए खेल रही हूं क्योंकि जिस प्रकार मुझे एक फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत होती है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरह से हमें मेंटल एक्सरसाइज की भी जरूरत होती है अपने मनस को स्वस्थ रखने के लिए. अब इसका उपयोग अगर ना भी हो, फिर भी ये मुझे एक इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन देता है, ये मुझे एक बौद्धिक संतुष्टि प्रदान करता है. अब इसके बाद अगर आप चाहो तो उसका उपयोग कर भी सकते हो, अगर आप चाहो तो उसका उपयोग नहीं भी कर सकते. हम लोगों ने 20 तक टेबल याद की थी, अगर आपको याद हो. मुझे पर्सनली केवल 12 तक की टेबल आती है क्योंकि मुझे लगता है 12 तक की टेबल से मेरा काम चल जाता है. और काम चलने का मतलब ये है कि जब मैंने टेबल सीखी तो मैं सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदते समय उस गुणा गणित का इस्तेमाल कर सकता हूं.
अपने घर को बनवाते समय मैं लंबाई चौड़ाई का परिमापन कर सकता हूं या ऐसी ही किसी जगह पे इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं इस्तेमाल ना भी कर पाऊं तो उससे विधा की प्रासंगिकता समाप्त नहीं हो जाती। तो हर वो व्यक्ति जो ऐसा बोलेगा कि ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के सब्जेक्ट हमारे लिए अनुपयोगी हैं, तो मेरा उनके लिए एक ही रिस्पॉन्स, एक ही प्रत्युत्तर होगा कि प्रासंगिकता और उपयोगिता किसी भी डिसिप्लिन का नेसेसरी ट्रेट नहीं होता। आप उससे प्रासंगिकता प्राप्त कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इससे उस विधा, उसके टूल्स, उसके टेक्निक्स, उसकी थ्योरीज का महत्व ना तो कमतर होता है और ना ही आप उसको नजरअंदाज कर सकते हो। तो इसी तरह के परिप्रेक्ष्य में अपनी बौद्धिक संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हमारे पास कई नई नई आइडियोलॉजीज, नए प्रकार की विचारधारा और उनसे संबंधित सिद्धांतों का जन्म होता है। जैसे लॉजिकल पॉजिटिविज्म, जिसे हम तार्किक भाववाद कहकर के बुलाते हैं, लॉजिकल एम्पिरिसिज्म, जिसको हम तार्किक अनुभववाद कहकर के बुलाते हैं, फिनोमिनोलॉजी, जिसे हम समृद्धिवाद कह करके बुलाते हैं, और इसके साथ साथ एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसको हम लोग अस्तित्ववाद कह करके बुलाते हैं। नाउ अलाउ मी टू स्टार्ट माय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन which will make the discussion relatively easier for all of us. तो प्लीज मुझे 1 मिनट का समय दे। I hope the slide is visible to all. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So with this context, with this background, we will start discussion on existentialism with a special reference to Jean-Paul Sartre. Now let's get introduced to the topic. Now, this is my personal opinion that some anthologies treat great literature and philosophy as if they could be used to furnish a cultural supermarket where the reader shop around. Of course, it is the reader's right to browse, to escape, and not to read, whether a volume is by a single author or let's say 10 authors. What matters here is that a book should offer, when read straight through, more than the sum of its parts. तो जब हम लोग अस्तित्ववाद की बात करते हैं तो हम केवल सार्थ की चर्चा करके नहीं रुक सकते, हमको इसे कलेक्टिविटी में देखना होगा। The presentation here is intended to tell a story and a growing variation of some major themes. Its echoes and the contrast ought to add not only to the enjoyment, but also to readers' understanding and readers' comprehensibility. Now, existentialism is not a philosophy, but a label for several widely different revolts against traditional philosophy, जिसको हम लोग analytical philosophy भी कह करके बुलाते हैं। Now, most of the living existentialists have repudiated this label, and a bewildered outsider might well conclude that the only thing they have in common is a marked aversion for each other. तो आप पाएंगे कि क्रिकेगार्ड कुछ और बात कह रहे हैं, सार्त्र कुछ और बात कह रहे हैं, और सिमोन दे बुआ किसी और डायरेक्शन में जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद ये सारे के सारे लोग अस्तित्ववादी कहे जाते हैं और उसके पीछे कुछ कॉमन, कुछ जेनेरिक ट्रेड्स होते हैं। Now, I would like to mention some important names under the umbrella existentialism. So the three writers, I would abstain from calling them philosophers because they are not philosophers in the technical sense of the term, but yes, they are very significant names as thinkers. So the three thinkers or writers who appear invariably on every list of existentialism are Karl Jaspers, Heidegger, and Sartre. And these are not in agreement on essentials.
Now, such alleged precursors like Blaise Pascal and Soren Kierkegaard differed from all these three men by being dedicated Christians. And Blaise Pascal was a Catholic of sorts, while Kierkegaard was a Protestant's Protestant. तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा वेरिएशन हमको मिल रही है अस्तित्ववाद में. If, as is often done, Nietzsche and Dostoevsky are included in the fold, we must make room for an impassioned anti-Christian and as even more fanatical Greek Orthodox Russian imperialism. Now, by the time we consider adding names like Rilke, Frank Kafka, and Albert Camus, it becomes plain, it becomes evident that one essential feature shared by all these men is their preferred individualism. तो व्यक्ति का महत्व संस्था से अधिक है और व्यक्ति का महत्व संस्था का पूर्वगामी है, ये सभी के सभी चिंतकों का अनिवार्य गुण माना जा सकता है. तो ये मानते हुए हम लोग कुछ बेसिक टेनेट्स की बात करेंगे, अस्तित्ववाद के कुछ चारित्रिक गुणों की बात करेंगे. Now, this means the refusal to belong to any school of thought. हमारे एग्जिस्टेंशियल थिंकर्स किसी भी वाद से जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि किसी भी वाद से जुड़ना बहुत सारी सीमितताओं को जन्म देता है. आपको उस वाद, उस इज्म की सारी थ्योरीज और सारी सब थ्योरीज से सहमत होना पड़ेगा. यू कैन नॉट बी इक्लेक्टिक, यू आर नॉट देयर टू पिक एंड चूज. सो ईदर यू विल टेक ऑल और यू विल लूज ऑल. इस तरह की आइडियोलॉजी से जुड़ना किसी भी अस्तित्ववादी को पसंद नहीं होगा. The repudiation of the adequacy of any body of belief, whatever, and especially of system. तो ये कभी भी नहीं मानेंगे कि कोई भी वाद, कोई भी व्यवस्था, कोई भी विचारधारा स्वयं में संपूर्ण होती है. हर व्यवस्था में कुछ बेहतर करने की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए. Every system should be open-ended in nature. And a marked dissatisfaction with traditional philosophy as superficial, purely academic, and remote from life, that is the heart of existentialism. तो ये उस प्रकार के सामान्य और पारंपरिक चिंतन के खिलाफ जाना चाहते हैं जो केवल एकेडमिक्स तक, केवल क्लासरूम टीचिंग तक स्वयं को सीमित रखना चाहते हैं. तो हर अस्तित्ववादी ना तो किसी विचारधारा से जुड़ेगा, ना ही किसी व्यवस्था को संपूर्ण मानेगा, और ना ही पारंपरिक शैली को, जो कि प्योर है, शुद्ध है और जीवन के परे है, को स्वीकार करना चाहेगा. This is what all existential thinkers would agree with. They have a mutual consensus on these tenets. So existentialism in this way can be understood as a timeless sensibility that can be discerned here and there in the past, but it is only in recent times that it has hardened into a sustained protest and preoccupation. तो मैं कभी भी ये दावा नहीं करूंगा, क्योंकि सार्थ और क्रिकेगार्ड 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में थे, तो सारा का सारा एग्जिस्टेंशियलिज्म यहां से शुरू हुआ. मेरा मानना है कि अस्तित्ववाद अपने आंशिक रूपों में, अपने ट्रेसेस में प्लेटो के समय से ही विद्यमान रहा है, लेकिन इसे और ज्यादा मुखर और ज्यादा सुदृढ़ करने का अवसर हमको वर्तमान युग में प्राप्त होता है. Now, this is not meant to be a defense of arbitrariness. ये कह के मैं कहीं भी एक प्रकार की अराजकता का समर्थन नहीं कर रहा. मैं ये कहीं भी नहीं कह रहा कि existentialists are promoting or supporting some kind of chaos, some kind of despotism. A personal perspective may suggest one way of ordering diffuse materials and be fruitful if only by way of leading others to consider decent. यानी हमारी पारंपरिक व्यवस्थाएं जो कि इंस्टीट्यूशन, संस्था को इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति के पहले रखने का प्रयास करते थे, इसके साथ हम डिसेंट रखेंगे, इसके साथ हम डिसएग्री करेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है
The society is made of the individuals and it is not the other way around. तो हम सोसाइटी, संस्था, स्टेट, सॉवरेंटी, टेरिटरी का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि इन सारे के सारे संस्थाओं को व्यक्ति के लिए होना चाहिए। ये एक बड़ी ही नवीन प्रकार की विचारधारा और दृष्टिकोण है, जिसके साथ हमें ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स, इवन एनिमल राइट्स, और आज के समय में तो हम लोग नेचर्स राइट्स की भी बात करते हैं, इस प्रकार की विचारधारा का जन्म संभव हो पाता है। और ये हमें सोचने के लिए अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग एस्पेक्ट्स प्रदान करते हैं। So here I would like to start with the first thinker in which we find the systematic traces of existentialism, जिनका नाम था फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, 1821 to 1881। दोस्तोयेव्स्की ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि वो एग्जिस्टेंशियल थिंकर हैं, फॉर द ऑब्वियस रीजंस, लेकिन इनके लेखों में, इनके नॉवेल्स में, इनकी कृतियों में हमें आंशिक रूप से अस्तित्ववाद की झलक सर्वप्रथम प्राप्त होती है। In some of the earliest philosophers, such as Pythagoras and Heraclitus and Empedocles, we sense a striking unity of life and thought. And after the generation of the sophist thinkers, Socrates is said to have brought philosophy down to earth again. क्यों? क्योंकि अब हम पहली बार जस्टिस, लव, फ्रेंडशिप जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, जो व्यक्ति से संबंधित हैं, न कि संस्था से संबंधित हैं। In the Socratic school and in Stoicism a little later, philosophy goes above all a way of life. इसे हम एक जीवन शैली, जीवन जीने के तरीके के तौर पर स्वीकार करते हैं। And throughout the history of philosophy, other more or less similar examples come to mind, most notably of Benedict Spinoza. Even so, it is an altogether new voice that we hear in Dostoevsky's Notes from Underground. बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है। यह आपको एक डिस्कंफर्ट देगी, आपको एक असमंजस और एक परेशानी का अनुभव होगा। The pitch is new, the strained protest, the self-preoccupation. What you perceive is an unheard of song of songs on individuality. And it is not classical, not biblical, and not at all romantic. यहां पे बिब्लिकल, क्लासिकल या रोमांटिक का अर्थ है एक दिवा स्वप्न को देखना, एक ऐसा दिवा स्वप्न जो हमको प्राप्त नहीं हो सकता। No, individuality is not retouched, idealized, or holy. It is wretched and revolting, and yet for all its misery, the highest good. The bias against science may remind us of romanticism, but the notes from underground are deeply unromantic. तो दोस्तोयेव्स्की का ये कथन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। A man who lies to himself and believes his own lies becomes a lie. उनकी किताब नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड एक ऐसा फर्टाइल ग्राउंड देती है जिसपे एग्जिस्टेंशियलिज्म का विकास भी होता है और इसमें परिष्कार भी आता है। As I have said, it was a clear-cut aversion to romanticism. Nothing could be further from that softening of the contours which distinguished all romantics from the first attack on classicism to Novalis, Keats and Wordsworth. अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे लिटरेचर्स का नाम क्यों आ रहा है जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिस्ट अपने आप को कभी भी बाउंड्री में, लिमिट में बांधना पसंद नहीं करते। दे डू नॉट बिलीव इन एनी सॉर्ट ऑफ एयर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन। They borrow from here and there, which is useful for the growth of your individuality. Romanticism is flight from the present, whether into the past, the future, or another word, dreams, or most often a vague fog. Romanticism is self-deception, जिसे हम दुरास्था या कुआस्था कह करके बुलाते हैं।
Romanticism yearns for deliverance from the cross of the here and now. It is willing to face anything but the facts. तो काफी एरोगेंट भी हैं और काफी ब्लंट भी हैं ये अस्तित्ववादी चिंतक. The atmosphere of Dostoevsky's notes to underground is not one of the soft voices and the dim lights. No prize, however great, can justify an ounce of self-deception or a small departure from the ugly facts. And yet, this is not literary naturalism with its infatuation with material circumstances. रोमांटिसिज्म से बाहर निकलना शुद्ध रूप से भौतिकवादी हो जाना नहीं होता. It is man's inner life, his moods, anxieties, and his decisions that are moved into the center until, as it were, no scenery at all remains. Now, this book, which was published in 1864, I believe, is one of the most revolutionary and the most original work of the world literature. And here we start a school known as existentialism. इनफैक्ट वॉल्टर कॉफमैन जो बहुत बड़े कमेंटेटर माने जाते हैं अपनी किताब एग्जिस्टेंशियलिज्म फ्रॉम दोस्तोवेस्की टू सार्त्र में लिखते हैं, published in 1956, quote unquote, I can see no reason for calling Dostoevsky an existentialist, but I do think that part one of Notes from Underground is the best overture for existentialism ever written. With inimitable vigor and finesse, the major themes are stated here that we can recognize when reading all the other so-called existentialists, from Kierkegaard to Camus. A beautiful statement. और इसके बाद क्योंकि ये हमारा मूल बिंदु नहीं है तो हम लोग फौरन अगले पे जाते हैं जिनका नाम सोरेन क्रिकेगार्ड है, 1813 to 1855. Now, Kierkegaard was dead 9 years when Notes from Underground was published first in 1864. He had not known of Dostoevsky, nor did Dostoevsky know of him. Nietzsche, on the other hand, read Notes in 1887 and was deeply impressed, as rarely in his life, and a year and a half later, towards the end of his career, he heard of Kierkegaard. Too late to secure any of his books. Henceforth, the sequence of our major characters is quite clear. Kierkegaard confronts us as an individual, while Dostoevsky offers us a world. Both are infinitely disturbing, but there is an overwhelming vastness about Dostoevsky and a strident narrowness about Kierkegaard. If one comes from Kierkegaard and plunges into Dostoevsky, one is lost like a man brought up in a small room who is suddenly placed in a sailboat in the middle of the ocean. Or you might even think that Dostoevsky has set out deliberately to make fun of Kierkegaard. Those, on the other hand, who listen to the Notes from Underground as to an overture are well prepared when the curtain rises to hear Kierkegaard's account of how he first became a writer. And that is why Kierkegaard says, anxiety is the dizziness of freedom. जैसा होता है ना हम सबके साथ कि अगर आप बहुत समय से पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में हैं और अगर आपको पहली बार ताजी हवा में सांस लेने को कहा जाए, अचानक आपको एक डिजीनेस, एक सुस्ती सी महसूस होगी. क्रिकेगार्ड भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि जब आपको पहली बार फ्रीडम इन द रियल सेंस मिलता है, जब आप टूल्स, टेक्निक्स, थ्योरी, इज्म की बाध्यता के बाहर निकलते हैं, तो आपके अंदर एक एंग्जाइटी पैदा होती है. And this is shown in his book, Stages on Life's Ways, and fear and trembling repetition. So as you can see, they are using the poetical language here, and they are not subdued by that. They are free, they are open to use whatever the discipline they would find suitable for their exposure. Now, Kierkegaard rejects belief in eternal varieties as well as Plato's trust in reason as a kind of second sight. हम सबको याद है ना, प्लेटो ने अपने रिपब्लिक की शुरुआत ही एक द्वैतवाद के साथ की थी.
उन्होंने कहा था रीजन इज समथिंग डिफरेंट, इट इज इटर्नल, अनचेंजिंग, यूनिवर्सल, ऑब्जेक्टिव, whereas opinion is something else because it is fluctuating, it is subjective and it is individualistic. उन्होंने कहा था हमें नॉलेज की ओर पढ़ना है और ओपिनियन को छोड़ देना है. There is a clear-cut dichotomy in Plato. It is also visible in Plato's two word theories, that is word of idea and a word of matter. और इसी के साथ आधुनिक युग में हमने बाइनरीज में सोचना शुरू कर दिया. उदाहरण के लिए अच्छा, बुरा, सफेद, काला. आई होप यू एग्री विद मी. सफेद का उल्टा काला होगा क्या? एनीवन? अगर कोई स्टूडेंट जवाब दें तो. सर वैसे हम लोग को ये बताया गया है कि सफेद का उल्टा काला होता है, बट अगर हम लोग एक्चुअली खुद से परसीव करें तो सफेद का उल्टा हरा भी तो हो सकता है. Absolutely. Thank you, Ashish. That was what I wanted to say here. कि प्लेटो की इस टू वर्ड थ्योरी ने हमको एक खास तरीके से चीजों को देखना सिखा दिया. अच्छे का एंटोनिम बुरा ही क्यों होगा? शायद मैं अच्छा भी ना हूं और बुरा भी ना हूं. शायद मैं एक संदर्भ विशेष में अच्छा बन जाता हूं और दूसरे संदर्भ विशेष में बुरा बन जाता हूं. थैंक यू रिया, आपका भी यही जवाब है. तो व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज हियर इज दैट कि प्लेटो के समय से एनालिटिकल फिलॉसफी तक हमने बाइनरी में सोचना सीख लिया. लैंग्वेज तो एक दूर की बात है. आवर थिंकिंग हैज अडॉप्टेड द बाइनरी टेक्निक. जैसा कि हम लोग कंप्यूटर्स में भी देखते हैं ना, 01001 1100 एंड सो ऑन. जैसा कि हमको सेट थ्योरी ने सिखा दिया कि हम चीजों को या तो फुल क्लास में या फिर नल क्लास में देखेंगे. नाउ दैट इज द प्रॉब्लम. ह्यूमन सोसाइटी डज नॉट फंक्शन लाइक दैट. हम बाइनरीज में ना तो सोचते हैं ना ही अवस्थित होते हैं. तो प्लेटो की ये थ्योरी हमें सिस्टमैटिसिटी तो देती है, हमें प्योरिटी तो देती है, बट ह्यूमन सोसाइटी इज वेरी कॉम्प्लेक्स. इट इज लेयर्ड बाय लेयर्ड बाय लेयर्ड. तो जब भी किसी सवाल का जवाब खोजने का प्रयास करते हैं, उदाहरण के लिए इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, है ना, अच्छी बात है या बुरी बात है? वेल, in some contexts, in some contours, it might be good, and in other contours, it might be bad. There cannot be a clear-cut yes or no answer possible here. क्या हम सब अच्छे हैं या हम सब बुरे हैं? The answer might be I don't know. For some people, I might be good, while for some other, I might be bad. तो इस तरह की ड्युअलिटी के खिलाफ जाने की पहली आवाज हमारे एग्जिस्टेंशियलिस्ट उठाते हैं. So the crucial difference between an informed and uninformed, a reasoned and unreasoned, a responsible and irresponsible decision escapes Kierkegaard. Yet he is unquestionably right that reason cannot absolve us from the need for decisions. And he sees that Greeks and Christians and modern philosophy have tried to ignore this all-important fact. They have tried to escape the need for choices, whether they sought refuge in attempts to contemplate what is eternal, or in analysis of the moral terms, whether they try to prove that Weltanschauung, a German term, I mean, the term which is in binary, the good or the bad, or try to prove the superiority of the Christianity or perhaps God's existence. तो ये कहना कि यही एकमात्र बात है और यही सही बात है, that would be problematic for the existentialist. क्योंकि किसी भी समस्या का केवल एकमात्र जवाब हो और वो क्लोज एंडेड हो, फाइनल हो, ऐसा कोई भी अस्तित्ववादी स्वीकार नहीं करेंगे. So that is why Soren Kierkegaard attacks the proud tradition of theology, ethics, and metaphysics as a kind of whistling in the dark, as self-deception, as an unrelenting effort to conceal crucial decisions that we have made and must make behind a web of wholly secondary and at times invalid
demonstrations. So instead of questioning to what extent mathematics or other sciences are valid models for philosophy or political science or ethics, he had recourse to patently invalid argument. Instead of asking whether Descartes' fine ideal that our reasoning should be clear and distinct, Rene Descartes और Francis Bacon का ये मानना था, reinforced since by tremendous progress of the science might not eventually lead philosophers to concentrate on logic and trivialities to neglect large and certainly important areas. Kierkegaard rashly renounced clear and distinct thinking altogether. उन्होंने कहा ये बातें किताबों में पेपर एंड पेन पे ब्लैक एंड व्हाइट में तो हमें आकर्षित करती हैं, लेकिन मानव समाज ऐसा नहीं होता, मानव अस्तित्व ऐसा नहीं होता कि हम उसे बाइनरीज में क्लियर कट नॉलेज के रूप में समझ सकें. Kierkegaard's central error is epitomized by his two epigrams, quote unquote, the conclusion of passion are the only reliable one. तो जब वो हमारी भावनाओं की बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो प्लेटो को नकार रहे हैं, लेकिन यहां भी एक समस्या है जिस पे मैं अभी आऊंगा. एंड वॉट आवर एज लैक्स इज नॉट रिफ्लेक्शन बट पैशन. यहां पे हमें क्या मिल रहा है? वो पैशन को प्रधानता दे रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो दोबारा प्लेटो पे चले जा रहे हैं, क्योंकि वो मान के चल रहे हैं कि रैशनैलिटी का विरोध पैशनेट होना होगा, रीजन का अपोजिट इमोशन होगा. इसके बाद वाले एग्जिस्टेंशियलिस्ट बोलेंगे हमको ये बाइनरी माननी ही क्यों है? Why should we always think in dichotomy, in duality? Anyway, reason alone, to be sure, cannot solve some of life's most central problem. Does it follow that passion can, or that reason ought to be abandoned altogether? And belief of mathematics and mythology, as if where mathematical certainty is unattainable, we must be satisfied with the stories which cannot be questioned. Kierkegaard, of course, was far close to Martin Luther, who was anti-philosophical and individualistic. A little more subtly, to be sure, he echoes Luther's famous dictum, quote unquote, whoever wants to be a Christian should tear the eyes out of his reason. Also, you must part with reason and not know anything of it, and even kill it, else one will not get into the kingdom of heaven. So you can see how they are shifting from the rational certainty to they are the celebrating passions, feelings, and emotions. And here comes Nietzsche, one of the most powerful thinkers of the modern times, 1844 to 1900. हम लोग बिल्कुल chronological order में आगे बढ़ रहे हैं. So read superficially as he usually has been read, Nietzsche may appear to be in the same tradition, but he is not. It is for this reason above all that his attempt at a critique of Christianity must neither be ignored whether to shield the authority of Christianity, nor dismissed as barbarian protest against sympathy and virtue. तो आपने सुपरमैन का कॉन्सेप्ट देखा होगा और मास्टर्स मोरालिटी और स्लेव्स मोरालिटी को देखा होगा, जो नीचे में बड़ी उभर कर सामने आती है. To be sure, Nietzsche was no less than Kierkegaard an apostle of passion and a critique of hypocrisy. But he did not extol passion at the expense of reason, and he repudiated Christianity not because he considered it too rational, but because he considered it the arch enemy of reason. And his caustic critique of faith, both in Antichrist and elsewhere, read like considered censor of Kierkegaard, among others. Now, was Nietzsche an existentialist? Just by our initial criteria, जैसी बात हम लोग ने अभी तक की, Nietzsche might be called an existentialist. I'm not sure. The refusal to belong to any school of thought, the repudiation of the adequacy of any body of belief, opposition to philosophical system, and a marked dissatisfaction with traditional philosophy as superficial, academic, and remote from life,
All this is eminently characteristic of Nietzsche, no less than that of Kierkegaard. ये सारी चीजें हमको नीचे की दो टेक्स्ट में मिलती हैं, बियॉन्ड गुड एंड इविल, और दूसरी दस स्पेक जराथुस्ट्रा। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, कभी अगर आपको समय मिले तो आप पढ़ने का प्रयास जरूर करें। और इसके बाद अगले थिंकर आते हैं जिनको हम लोग कार्ल यास्पर्स के नाम से जानते थे, इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ जेan पॉल सार्त्र, 1883 to 1969. And it is in the work of Karl Jaspers that the seeds sown by Kierkegaard and Nietzsche first grew into existentialism, as he prefers to call as, in French, existential philosophy. One reason for his opposition to the label existentialism is that it suggests a school of thought, a doctrine among others, a particular position. Even of the term existential philosophy, he once said after using it, quote unquote, the name itself is misleading insofar as it seems to restrict. Philosophy can never wish to be less than primordial, eternal philosophy itself. This existential philosophy is meant to be a protest against the betrayal of this primordial and eternal philosophy by the professors who teach philosophy, who teach psychology, who teach political science at our modern universities. So this was the book which works as the fundamental ground for the development of existentialism, written by none other than Karl Jaspers. And here we see a clear-cut influence of psychology on our stream of thoughts. तो जहां पे हमारी जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है वो साइंस से, मैथमेटिक्स से प्रभावित हो रही है, रीजन को कल्मिनेशन पे ले जा रही है, उसकी अनकंटेस्टेबल अथॉरिटी को मान रही है, वहीं पे दूसरा स्कूल जिसको हम एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं वो साइकोलॉजिकल इंक्लिनेशन रख रही है। और जब साइकोलॉजिकल की बात आएगी, सो इट विल टेक्निकली बी फोकसिंग ऑन द ह्यूमन नेचर, यानी हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु मनुष्य होगा और कुछ भी नहीं। और चूंकि मनुष्य होगा तो मानवीय जगत का अध्ययन, मनोविज्ञान निश्चित रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। Karl Jaspers' attitude, and indeed that of the other existentialists too, towards one just science is particularly deserves special attention, and that is psychology. It was with some justice that Nietzsche asked in the last chapter of his Ecce Homo, who among philosophers before me has been a psychologist? And as we read the notes from underground, we might as well ask, what novelist before Dostoevsky deserves to be called as a psychologist? And confronted with Kierkegaard's treatment of original sin in the concept of dread, we might ask again, what theologian before Kierkegaard was a psychologist? And might not Karl Jaspers ask, who among philosophers before me has been a psychiatrist and a doctor of medicine? And Heidegger might well ask, who among philosophers before me has found it necessary to insist again and again that what he offered in his major work was not psychology? Sartre finally entitles an important chapter of his central philosophical work, Existential Psychoanalysis. तो ये बड़े ही गर्व के साथ, बड़े एरोगेंस के साथ ये बताते हैं, हम सोशल साइंस भी कर रहे हैं लेकिन हम साथ में साइको एनालिसिस भी कर रहे हैं। और जब हम साइको एनालिसिस कर रहे हैं तो एग्जिस्टेंशियल एस्पेक्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंड हियर वी कम टू सार्त्र 1905 to 1980. Now it is mainly through the works of Jean-Paul Sartre that existentialism has come to the attention of a wide international audience. Sartre's writing bear the stamp of his experience from the outset. हम सबको पता है सार्त्र ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, वो हिटलर के खिलाफ लड़े भी थे और उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका का फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस था। उन्हें इस प्रकार का अनुभव था कि किस प्रकार से व्यक्तियों को नंबर में बदल दिया जाता है।
उन्हें इस प्रकार का अनुभव था कि जब लोग मरते हैं तो कोई व्यक्ति नहीं मरता, बल्कि इस ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट ने केवल नंबर, केवल संख्या में उन्हें बदल दिया। हम टेलीविजन खोलते हैं और हमें पता चलता है 100 लोग मारे गए। क्या ये मात्र एक संख्या है? क्या उनका कोई अपना वजूद, अपना अस्तित्व नहीं रहा होगा? क्या सब एक समान क्वालिटेटिवली अलाइक है जो आपने एक ही प्रकार की संख्या में उन्हें दे दिया? क्या हर व्यक्ति का अपना एक यूनिकनेस, अपनी विशिष्टता नहीं होती? ये सारे प्रश्न हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात सार्त्र के मनस में आते हैं और उन्हें एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद की ओर प्रेरित करते हैं। Sartre's writing bear the stamp of his experience from the very outset. In 1938, he lays down his experience of the 30s in law nausea. Nausea हम सब जानते हैं ना? हम बिल्कुल इरिटेट हो जाते हैं, किसी चीज से हम भागना चाहते हैं क्योंकि हम उससे थक चुके हैं। We are anxious, we are depressed, we are frustrated, and we don't know where to go. No reader can fail to notice that it is his own experience, not mere celebration. तो ये केवल बता नहीं रहे हैं, ये उनके व्यक्तिगत अनुभव हैं जो उन्होंने विभीषिका में झेले, और यही वजह है उनके अनुभव एक जीवंत अनुभव के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिससे हम सब खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अपनी स्टार्टिंग फेज में हर स्कॉलर सार्त्र के साथ, मार्क्स के साथ एक जुड़ाव महसूस करता है और पहली चॉइस सार्त्र के रूप में सामने आती है। एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस, क्वाइट नेचुरल। नाउ इन 1939, on the eve of the war, he prints 5 stories including The Wall and The Long Childhood of a Leader, which fuse existential motives with an agonized awareness of the moral existential issues of the period and a wealth of psychologic observations, right, rarely equaled since the Notes from Underground. तो आप Notes from Underground जो दोस्तोयेव्स्की से आती है और मॉडर्न टाइम में सार्त्र के बीइंग एंड नथिंगनेस तक एक कॉन्टिन्यूटी, एक तारतम्यता को पहचानेंगे, एंड दैट विल गिव यू द एंजॉयमेंट ऑफ रीडिंग सार्त्र। The strictly philosophic writing of that period are still rather academic, being exercises in the phenomenology of Husserl, though it is characteristic that the subject of these exercises is only and only human emotion. So this is the classic book and this is the person. And as you can see the slide, Sartre was blind from his right eye. उनको उनकी राइट आई से दिखाई नहीं पड़ता था और उनको यहाँ पे एक पत्थर की आंख लगवानी पड़ी थी, जिसकी वजह से उन्हें अपने स्कूल डेज में बहुत ज्यादा बुली किया गया था, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था, एंड ऑल ऑफ हिज इमोशंस कम आउट इन द फॉर्म ऑफ हिज एग्जिस्टेंशियल थ्योरी। तो ये एक साइंटिस्ट की तरह लैब में बैठ करके एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। फॉर सार्त्र, सोसाइटी इज आवर लैब and none of the experiments can ever be repeated. So we have to look at the social phenomena in a very cautious, in a very alert, and in a very, what to say, simple manner, so that it can be passed on to others. So Sartre is unique. It is different from all other thinkers we have read as if up to now. सार्त्र हॉब्स नहीं है, सार्त्र लॉक नहीं है, सार्त्र रूसो नहीं है, सार्त्र बिस्मार्क नहीं है, और ना ही सार्त्र रसल, स्ट्रॉसन, फ्रेगा और पियर्स है। सार्त्र is Sartre. Sartre's attitude towards psychology differs strikingly from Heidegger's and Jasper's. He has no fear of being taken for a man who writes psychology, and he does not consider it sub-philosophical to base discussion of despair, decision-making, dread, self-deception on experience. He does not upbraid Freud for presenting brutalizing demands, nor does he insist that his own discussion has nothing to do with psychology or psychoanalysis. He writes, और ये सारे दावे कार्ल यास्पर्स और हाइडेगर ने किए हैं। सार्त्र ऐसा कोई भी दावा नहीं करते। He is open-ended in his thoughts. He writes as if it were a well-known fact that there are 2 schools of psychoanalysis,
Freud's psychoanalysis and Sartre's psychoanalysis, what he calls later as existential psychoanalysis. Sartre is a philosopher in the French tradition, which more often than not has produced men who stand at the borderline of philosophy and literature. Montaigne, Pascal, Voltaire, Rousseau, and even Bergson come to mind in this connection, as in most of these cases. It would be beside the point to speculate how much space he will receive in future histories of philosophy. Undoubtedly, he will be remembered not least for his unprecedented versatility. He is much more interesting than most of his contemporaries, whether he writes short stories or novels, essays or philosophy, or plays or literary criticism. It is one of Sartre's greatest virtues that his style of thought is not oracular or monologue. सार्थ किसी ऊंचे पेडेस्टल पे नहीं बैठे हैं जहां से वो बाकियों को सरमन दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं. He is one amongst us. He can relate to our issues. He can relate to our anxiety, and all of his works say so. What makes self-deception possible, according to Sartre, is that the post-soi differs from in-soi, or to be concrete. A man is not a homosexual, a waiter, or a coward in the same way in which he is 6 feet tall or he is blonde. तो जब आप पैदा होते हैं तो पैदा होते ही आपके पैदा होने से भी पहले आपके पेरेंट्स ये निर्धारित कर लेते हैं, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, उनके बीच में चर्चा परिचर्चा होती है जिसके आप पार्ट बिल्कुल भी नहीं है. तो पहले ही निर्धारित हो गया होगा कि अदिति, आकांक्षा, अनामिका, अंकिता, अनु, आप बड़े होके क्या करोगे, क्या पढ़ोगे, क्या बनोगे, कहाँ रहोगे, ये सारे के सारे निर्धारण आपके लिए पहले ही कर दिए गए हैं और आपका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं. आपका तो आपके नाम के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं, वो किसी और ने आपके ऊपर इंपोज कर दिया और आप उसे धोते हुए आगे चलते हो. Where is your choice? Where is your decision making capacity? We have been brainwashed in such a manner that we accept the imposed facts as our reality. And that is the major problem. इस प्रॉब्लम को सिमोन दे बुआ आगे भी बढ़ाती हैं. जैसा कि आप सबको पता है कि जब वो द सेकंड सेक्स के एक पर्टिकुलर चैप्टर द मैरिड वुमन में लिखती हैं, एंड इट क्लियरली इकोज Sartre's opinion when she says, quote unquote, women are not born, women are made. Such a thought-provoking, such a beautiful statement. And it comes from Sartre. The crux of the matter is suggested by such words as possibility, choice, and decision. If I am 6 feet tall, that is that. It is a fact no less than that the table is 2 feet high. But being a coward or a waiter, however, is something different. आप सब चीजों को एक ही खांचे में नहीं रख सकते. Human life is different from, let's say, the life of a cup. This cup does not have a choice. I, as a person, have a choice. And choice brings lot of other things to us. Decision, anxiety, nostalgia, nausea, self-deception, bad faith, post-soi, en-soi, and so on. It depends always on the decisions we make on every step. I may say, I must leave now. I'm that way because I'm a waiter or a coward, as if being a waiter or a coward were a brute fact, like this cup is black. But these are not brute facts. These are the matter of choices we have made consciously in front of others. We can change our choices, and the kind of decision you make, that decides your human existence, as different from the existence of this cup or let's say this mobile. अगर कभी आपको समय मिले तो एक किताब आप जरूर पढ़िएगा, हिंदी में है, सच्चिदानंद अज्ञे की लिखी हुई शेखर एक जीवनी, which gives the clear depiction of Sartre's view in Hindi literature. Actually, this is apparent statement of fact wields a decision. This theme is elaborated further and without forbidding terminology in Sartre's
portrait of the anti-Semite. Here, Sartre tries to show that man is not an anti-Semite the way he is blonde. He chooses to be an anti-Semite, says Sartre, because he is afraid of freedom, openness, and change, and longs to be as solid as a thing. He wants an identity. The person wants association with a group. He wants to be something in the manner in which a table is something or as a rock. At the outset, perhaps he plays at being an anti-Semite, but when it has become a second nature, the man has achieved nothing less than an escape from freedom. He has abdicated his humanity. So that is how Sartre gives language to his thoughts, which are layered, which are complicated, but still they are open-ended in nature. आपके चुनाव आपको वो बनाते हैं जो आप हैं. जहां पे डेकार्ट कहते हैं cogito ergo sum, I think therefore I exist, but सार्थ कहेंगे I choose therefore I exist. लेकिन स्पाइडरमैन मूवी में भी आपने देखा था, बिगर पावर्स गिव यू बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बड़ी ताकत आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी देती है. और ये ताकत क्या है? दैट इज द पावर टू चूज. आपका स्टेटस, आप कितना चुनाव कर सकते हैं, इसके ऊपर होता है. स्टूडेंट से एक बड़े ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसके साथ हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे. आप लोग ने रोड साइड स्टॉल पे भी कुछ खाया होगा, आपने बड़े बड़े होटलों में भी कुछ खाया होगा, एंड क्वाइट सरप्राइजिंगली दोनों जगह की रेसिपी का स्वाद बिल्कुल एक जैसा भी होता है, मोर और लेस एक जैसा होता है. तो वो क्या चीज है जो रोड साइड स्टॉल्स को लोअर लेवल पे रखती हैं और आपकी 3 स्टार 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट को हायर लेवल पे रखती हैं? कोई बता सकता है क्या? वी आर जस्ट वाइंडिंग अप. सर, एक तो क्वालिटी और एक उसका स्टेटस. ओके, वसुंधरा, क्वालिटी के बारे में आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अगर आप अच्छे से अच्छे फैसिलिटीज, यस. हाँ, तो मैं कह रहा था कि रोड साइड स्टॉल, सॉरी, मेंटालिटी सर. मेंटालिटी. सोचिए सार्थ क्या कहेंगे. सार्थ कहेंगे कि जब आप रोड साइड स्टॉल पे जाते हो और मान लीजिए कि आप बनारस में एक रोड साइड स्टॉल पे पकौड़े खाने जा रहे हो, और अगर आप उससे पूछो कि क्या आपके पास पिज्जा है, तो रोड साइड स्टॉल का वो वेंडर आपसे बोलेगा हमारे यहाँ सिर्फ समोसे या पकौड़े मिलते हैं, आपको खाना आगे चाहिए. विच मीन्स यू हैव लेस चॉइस, अ क्रिस्प स्मॉल मेन्यू. एक्चुअली मेन्यू होता ही नहीं. आप जितने बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे, आपकी चॉइसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाएंगी. जितना बड़ा मेन्यू उतना बड़ा रेस्टोरेंट. यानी आप, आई होप यू वुड एग्री विद मी, कि जो आपको चॉइस दी जाती है, जो आपको पैम्पर किया जाता है कि आप कुछ भी चूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है. ये स्टॉल को, रोड स्टॉल को आपके रेस्टोरेंट से अलग करता है. दैट गिव्स यू अ पावर टू चूज. और यही सोसाइटी में आपके एग्जिस्टेंस को एक ऑथेंटिसिटी प्रदान करता है. So the biggest power you have is the power to choose, but this is a paradox. You do not want to choose. क्यों? क्योंकि आप चुनाव करोगे तो उसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आएगी. याद कीजिए, जब हम लोग क्लास 6 और 7 में पढ़ते थे तो हम लोग हमेशा इंतजार करते थे, कम से कम मैं करता था, मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं, कितना अच्छा होगा जब मैं 11th में पहुंचूंगा और मेरी चॉइस होगी मैं मैथ्स पढ़ूं या मैं ना पढ़ूं. लेकिन जब मैंने 10th पास किया तो मुझे लगा अगर मैंने मैथ्स छोड़ दिया और कहीं मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे. तो फिर मैं अपने पेरेंट्स के पास गया और मैंने उनसे कहा आप प्लीज डिसाइड कर दो कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए. और इस तरह से मैं अपने चुनाव की शक्ति से बच गया. मैं किससे बचना चाह रहा था? चुनाव से नहीं, मैं चुनाव के साथ आने वाली जिम्मेदारियों से बचना चाह रहा था. लेट मी साइट एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल टू यू बिफोर वाइंडिंग अप. इंडिया में लव मैरिजेस की कंपैरिजन में अरेंज्ड मैरिजेस ज्यादा होती है. ऐसा क्यों?
कोई बता सकता है? आशुतोष, क्योंकि सर जी, क्योंकि सर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट्स द पॉइंट। अगर अरेंज मैरिज होगी तो मम्मी पापा ही चली जाएगी। एग्जैक्टली आशुतोष, दैट इज द पॉइंट जिसको मैंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके बताने की कोशिश की है। तो हम सुविधा तो चाहते हैं जो हमारे चयन से हमको मिलेगी, लेकिन इस सुविधा के साथ मिलने वाले जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं, और फिर हम एक सेल्फ डिसेप्शन, एक बैड फेथ, एक आत्म प्रवंचना, एक दुरास्था में चले जाते हैं, मानो हमारे पास चयन का अधिकार ही ना हो। सार्थ कहेंगे आपके पास चुनाव का अधिकार हमेशा से था, हर वक्त है, और जब तक आपका ह्यूमन एग्जिस्टेंस बना रहेगा तब तक आपके पास चुनाव का अधिकार रहेगा। और जब आप कहते हो चुनाव का अधिकार नहीं है, तो आप झूठ बोलते हो, और वो झूठ आप दूसरे से नहीं स्वयं से बोलते हो, और ये झूठ आप इतनी बार बोलते हो कि आप स्वयं उसके ऊपर सहज विश्वास करने लगते हो, मानो वही सत्य हो। And that is the paradox of choice and deception, which is the core point of Sartre's existentialism. इसीलिए उनकी किताब का नाम ही है बीइंग एंड नथिंगनेस। जब आप स्वयं के चुनाव अपने से करते हो तो आप अपनी बीइंग को असर्ट करते हो, और जब आप अपने चयन से बचते हो तो आप नथिंगनेस पे चले जाते हो। एंड दैट मेक्स द इंटायर डिफरेंस। So the critical evaluation would say the existentialists have tried to bring philosophy down to earth again, just like Socrates. But the existentialists and the analytical philosophers are each only half a Socrates. Why so? The existentialists, starting from Dostoevsky, coming up to Sartre and Simone de Beauvoir and Mary Wollstonecraft, all these have taken up the passionate concerns with questions that arise from life, the moral pathos, and the firm belief that to be serious, a philosophy has to be lived. ये एक तरह की पॉपुलर फिलॉसफी है जो हमको और ज्यादा attachment देती है. We can connect to that. On the other hand, the analytical philosophers insist that no moral pathos, no tradition, and no views, however elevated, justify unanalyzed ideas, murkier grounds, or a touch of confusion. तो एनालिटिकल फिलोसफर्स के थॉट बिल्कुल 7 + 5 = 12 की तरह होंगे, लेकिन एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर कहेंगे 7 और 5 12 बनने से पहले आप बताओ 7 क्या? क्या वो 7 अमरूदों की बात हो रही है? क्या वो 7 समोसों की बात हो रही है? या 7 मनुष्यों की बात हो रही है? क्योंकि अगर मनुष्यों की बात है तो मैटर बिकम्स एग्रीवेटेड, इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, because every human existence is individualistic, every human existence is unique, and let us celebrate this kind of individuality over the institutionalized, over the binary understanding. इसी वजह से एग्जिस्टेंशियलिस्ट ना तो मोनोलॉग की बात करते हैं, ना ही डायलॉग की बात करते हैं, बल्कि ये मल्टीलॉग की बात करते हैं, जिसमें एक ही चीज को आप अलग अलग डायमेंशन से देख सकते हो, और हर किसी का अनुभव नायाब होता है, अनूठा होता है, दूसरे से अलग होता है. In Nietzsche and more or less in every great philosopher before him too, philosophy occurred in the tension between these two timeless tendencies, now inclining one way, now the other. And today, this dual heritage has been developed in different camps, and between them, they have made us aware of the pitfalls of traditional philosophy no less than of each other's faults. That the existentialists and the analysts will get together is not likely. ये tension हमेशा बना रहेगा. But if the fate of Socrates is really to be repeated, and philosophy and academia is to have a future outside the academic room, there will have to be philosophers who think in the tension between analysis and existentialism. तो मेरा कहीं भी ये दावा नहीं है कि existentialism is the best philosophy, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूं कि considering its pros and cons, existentialism gives us
a unique way of thinking, a unique way of proceeding further as an individual. And let us celebrate it in the form of feminism. Let us celebrate it in the form of individualism. And let us celebrate it in the form of free thinking in the field of existentialism. Thank you. Thank you, sir. Every individual is unique. Celebrate individuality, make choices, and take responsibility. I don't know what to say that in this 1 hour and 30 minutes, we have covered so much, and this journey was so. You see, it was not complex. And whenever we say that we are inviting someone who is from philosophy, we think that lecture is going to be very complex and very difficult. But this myth is broken today. And you started in this 1 hour and 15 minutes. We covered a journey of we started from 18th century and coming to Sartre, and you presented things in such a simple way. I mean, the best part of the lecture was that, and the best lecture can be that where a speaker can present the most complex thing in very easy way. And I sincerely hope that my student, all the students from all the colleges, from my college, from Vasanta College, from VKM, from DAV, they all will agree that you could reach them. You could reach them. And now one more thing, that the vast area which you have opened in front of them, now that will make them study further. Number of books, number of quotation, and I myself am thinking that so many things are there to study, so many things there are to read. So this way, I must thank you, sir, for the wonderful lecture, wonderful lecture. Now I'll open this floor for question answer, not question answer only. If you want to ask anything, because there are few things, the question of love, the question of death, question of life, so many things which are related to us. So if those students who want to ask, please raise your hand and I'll invite one by one so that we can take up your question. Anu, you have raised your hand. Please unmute. आप पूछ सकते हैं अनु अपना क्वेश्चन जो भी पूछना चाहते हैं. अनु and Vasundhara. So firstly Anu, then Vasundhara. I'll take one by one. Okay, wait for some time. Firstly, we'll begin with Anu. Hello, sir. Good evening. First of all, I want to show my gratitude to you that you put these words, this complex topic in such simple words that it went into my mind first time. So thank you so much. So my question is, as we read modernism, we also see these things like there was no cert. They also talk about multi-dimensions. They also talk about uncertainty, and they want to emphasize on the uniqueness of each and every individual. So, sir, my question is, how can we differentiate between existentialism and modernism? Thank you. Okay. A very fundamental question, and everybody should know about this. आमतौर पे जो एग्जिस्टेंशियल थिंकर्स होते हैं वो मॉडर्निटी की बात करें तो मॉडर्निटी के वक्त उनके दिमाग में दो चीजें आती हैं, दो थिंकर्स के नाम आते हैं. पहला फ्रांसिस बेकन, जिनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कह करके बुलाते हैं. दूसरा रेने डेकार्ट, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी कह करके बुलाते हैं. नाउ द ट्रेंड वाज दैट, अगर आप देखो कि हमारे जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे, एक्चुअली वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट और फिलोसफर, दे वर क्लब टुगेदर, वी ऑल नो दैट. तो ये एक तरह की कॉस्मोगॉनी कर रहे थे, यानी दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन इट्स टोटलिटी. मेडिवल एज में हम लोग देखते हैं कि द रीजन वाज डोमिनेटेड बाय द फेथ. तो हम लोग क्लीमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया को देखते हैं, हम लोग प्लॉटिनस को देखते हैं, जो अथॉरिटी पे ज्यादा एम्फेसिस देते थे कि जो चीज कह दी गई वो चीज सही है. इनफैक्ट हमारे अंदर भी ये अभी आता है, जिसको मेरे एक फ्रेंड हैं प्रवेश जंग आईआईटी मुंबई के, उन्होंने एक टर्म कॉइन किया, वो कहते हैं ऑ ऑफ द प्रिंट. हम सब ऑ ऑफ द प्रिंट में रहते हैं, यानी अगर कोई लिखी हुई चीज हमारे सामने आ गई, हमारे लिए वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन अगर वो बोली गई तो हम उसे सीरियसली नहीं लेते. हम सब कितने खुश हो जाते हैं ना कि अगर हमारा नाम न्यूज़पेपर में आ गया, हम उसकी कटिंग काट के अपने पास रखते हैं, मानो बड़ी महत्वपूर्ण बात हो गई. और आमने सामने शायद हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बात करें, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता.
नाउ दिस इज द ट्रेट ऑफ द मेडिवल एज, जिसने हमको सिखा दिया कि लिखे हुए पे आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, दैट बिकम्स अ पनिशेबल ऑफेंस। मॉडर्न टाइम्स ने हम लोग को क्वेश्चन करना सिखाया, और ये बहुत बड़ी बात थी, इससे किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन मॉडर्न टाइम्स के कुछ ड्रॉबैक भी थे। मैं पर्सनली 6 डिफरेंट ट्रेड्स को इसमें से निचोड़ कर बाहर निकालता हूं, जैसा मुझे समझ में आता है। आप लोग आगे चल के अपनी रिसर्च से और भी ज्यादा सुधार कर सकते हो। जब हम मॉडर्निटी की बात करते हैं तो मॉडर्निटी डुअलिटी को सपोर्ट करती है, बाइनरी को सपोर्ट करती है। नंबर 1, चीजों को आप यस या नो में समझोगे, देयर इज नो ग्रे एरिया इन बिटवीन। नंबर 2, मॉडर्निटी यूनिवर्सैलिटी को सपोर्ट करती है। हम ऐसी थ्योरीज बनाना चाहते हैं जो हर वक्त पे हर जगह लागू हो जाए। मानो हम ऐसी मास्टर की बना रहे हैं जिससे दुनिया भर के ताले खुल जाए। अब ऐसा हो सकता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। साइंस की लेबोरेटरी में तो ऐसा हो सकता है, मैं मान सकता हूं कि वाटर हमेशा 100 डिग्री पे बॉयल करेगा। क्या समाज में वो होगा? आई एम नॉट श्योर। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, अगर वैसी ही परिस्थितियां दोबारा हो जाएं, क्या फिर से रिवोल्ट होगा? हमें नहीं पता। So second thing is universality, and third is objectivity, which comes with modernity. Fourth is apriorism. Apriorism का मतलब कुछ चीजें हम अनुभव के पहले ही मान लेते हैं। इंग्लिश की क्लास आप करने गए लोअर केजी में, तो आपकी टीचर ने आपको ABCD बताया, आप उस पर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आपकी टीचर कहेंगी ये अल्फाबेट इसी ऑर्डर में आपको रटने ही पड़ेंगे, क्वेश्चन बाद में पूछिएगा। मैथ्स के टीचर ने पहले आपको 1 2 3 4 सिखाया, आपके पास ये अधिकार नहीं था कि आप ये पूछे कि 1 के बाद 2 ही क्यों आएगा और 2 के बाद 3 ही क्यों आएगा। तो शायद आपके टीचर बोलते ये तो ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सल फैक्ट है, क्वेश्चंस बाद में आएंगे। ये ए प्रियोरी है। फिफ्थ है इंटेंशनैलिटी। हम हर चीज में एक इंटेंशन खोजने की कोशिश करते हैं। हर चीज का कोई ना कोई उपयोग होगा, उसकी प्रासंगिकता होगी, तभी उसका मतलब है, वरना उसका कुछ मतलब ही नहीं है। भला ऐसा क्यों? क्या हमारे स्टूडेंट्स की जिंदगी केवल बोर्ड के एग्जाम तक ही सीमित है? क्या अगर बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा तो उनकी जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी? दिस द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। एंड लास्ट इज नोन एज टेलियोलॉजी। ये ग्रीक टर्म लिया गया है जो टेलॉस से बना है। टेलॉस का मतलब होता है पर्पस, यानी हर चीज का कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए। एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहेंगे भला ऐसा क्यों? भला ऐसा क्यों? हो सकता है मैं घर के बाहर निकलूं और बिना कुछ खरीदे वापस आ जाऊं, क्योंकि मैं सिर्फ टहलना चाहता हूं। हो सकता है उससे कोई पर्पस ना सर्व हो, बट दिस इज माय ह्यूमन एग्जिस्टेंस। So the schools like existentialism, which give a reaction to the typical modernity, would say we do not want to outrightly accept duality, universality, objectivity, apriorism, intentionality and telos. हमारी चॉइसेस बदलेंगी और उससे हमारे फिक्स सर्टेन नतीजे भी बदल जाएंगे। So I believe that is how existentialists see modernity. I hope I was clear. Yes, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Now, Ashish, you want to ask some question? You have raised your hand. Yes, ma'am. Please unmute yourself, Ashish. Yes, ma'am. Thank you so much, sir, for your wonderful lecture. सर मेरा एक कॉमन सा क्वेश्चन है, वो काफी फंडामेंटल क्वेश्चन है कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो है वो ये बात करते हैं कि वी आर फ्री टू चूज फ्रॉम द बर्थ, बट इफ वी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट इट फ्रॉम आवर बर्थ, आफ्टर आवर बर्थ, it is possible to we are free to choose everything by our own from after our birth, sir. ये कहाँ तक सही है? मतलब हम कहीं ना कहीं अगर बर्थ लेते हैं तो किसी न किसी एक फ्रेम में हमारा सब कुछ बढ़ना होता है, बट एग्जिस्टेंशियलिस्ट ये बोलते हैं कि हम सब कुछ फ्री चूज करने के लिए फ्री हैं। ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जी, मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है, आई एम श्योर आपने उसका नाम भी सुना होगा, गूगल पे फ्री डाउनलोडेबल भी है। इसका नाम है मेटामॉर्फोसिस, शायद कुछ ने पढ़ी भी होगी। फ्रैंक काफका की नॉवेल है और इसे आप
कभी भी समय मिले तो जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ये नॉवेल, और ये बिल्कुल एग्जिस्टेंशियल आइडियोलॉजी को मैनिफेस्ट करती है। आपको ये महसूस होगा द मेन कैरेक्टर जिसके जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और उसको लगता है इससे अच्छा तो मैं कॉकरोच होता, और अगले दिन जस्ट बाय शेयर कोइंसिडेंस वो एक कॉकरोच बन जाता है। और फिर पूरी नॉवेल में ये दिखाया गया है, उसको इस बात का एहसास होता है हमारे चुनावों से ही हमारे जीवन को वास्तव में जीवंतता मिलती है। हमें जो असफलताएं मिलती हैं, जो दुख मिलता है, उसका भी अपना महत्व है, और जो सफलता प्रसन्नता मिलती है उसका भी महत्व होता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये सब चीजें मेरे स्वतंत्र निर्णय, मेरे चुनाव पर आधारित हैं। तो जब यहाँ पे एग्जिस्टेंशियलिस्ट पोर सोई और एन सोई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो उनका ह्यूमन से मतलब है कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग। ये उस ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं जो अभी नवजात शिशु है। ऑफ कोर्स उसे तो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करना ही पड़ेगा, लेकिन जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं, जब आप अपने निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, तो आपको अपने निर्णय लेने चाहिए, और उन निर्णयों को लेने के पश्चात उसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल आशीष आपके लिए, और शायद हम सब इससे रिलेट कर पाए। हम सब ने कभी ना कभी कोई इंटरव्यू जरूर दिया होगा, और ईमानदारी के साथ देखें, जब आप इंटरव्यू या एग्जाम देते हो, और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब हमारे यहाँ के बच्चे फाइनल एग्जाम देने जाते हैं, आफ्टर द एग्जामिनेशन आई स्टैंड एट द डोर टू आस्क देम हाउ वाज योर पेपर। मेरा ये अनुभव है, अगर आप शुरुआत के 10 मिनट में पूछोगे तभी आपको ईमानदार उत्तर मिलेगा, क्योंकि उसके बाद आपका उत्तर पॉलिश हो जाता है, रिफाइन हो जाता है, और हम अपनी सुविधा के अनुसार अपने उत्तर को जस्टिफाई कर देते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू में, तो आप कहेंगे चूंकि अब की बार ईमानदार इंटरव्यू हुआ था इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ। और जब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो आप एक सेल्फ डिसेप्शन मोड में चले जाते हो। आप कुछ इस प्रकार से कहते हो, मानो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं इंटरव्यू अच्छा नहीं दे पाई, या फिर सिलेक्शन पैनल में कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया, या वगैरह वगैरह। एन नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशंस कैन बी गिवन। लेट्स फेस द फैक्ट, आपने एक चॉइस ली, आपने एक डिसीजन लिया, और उसके बेनिफिट्स या उसके रिपरकशंस आपके पास आ रहे हैं। साथ का बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल भी है, एक स्टूडेंट जिसको अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपनी फी भरने के लिए वेटर का यूनिफॉर्म पहनना पड़ रहा है, और जब वो वेटर बनता है तो बहुत लोग उसकी इंसल्ट भी करते हैं, उसको ह्यूमिलिएट भी करते हैं। वो अपने चारों तरफ एक वेब बना लेता है, और वो कहता है ये इंसल्ट मेरी नहीं हो रही, मेरे इस यूनिफॉर्म की हो रही है, तो वास्तव में मैं वेटर नहीं हूं, इंसल्ट तो वेटर की हुई है। सार्थ कहेंगे क्योंकि वेटर बनने का चुनाव आपका स्वयं का था, इसलिए जो भी अप्रिसिएशन होगी या जो भी ह्यूमिलिएशन होगा वो भी किसी ड्रेस का नहीं हो रहा, वो आपका ही हो रहा है, और उसके लिए आप ही उत्तरदायी हैं। तो आशीष, आई टोटली एग्री विद यू दैट एट सम जंक्चर वी डू डिपेंड अपॉन अदर, वी टेक गाइडेंस फ्रॉम अदर, काउंसलिंग फ्रॉम अदर, लेकिन ये गाइडेंस और काउंसलिंग लेना भी हमारी फ्री चॉइस है। और अगर वो स्थिति भी आपकी नहीं है तो सार्थ उसके बारे में बात नहीं कर रहे। सार्थ कॉन्शियस एडल्ट मैच्योर चॉइस मेकिंग इंडिविजुअल के बारे में ही बात कर रहे हैं, और उसी को वो ह्यूमेन क्वालिटी से युक्त मान रहे हैं। आई होप आई हैव बीन क्लियर आशीष। Yes, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. There is one more question. Vasundhara, you have raised your hand. Vasundhara, would you like to ask something? थैंक यू सर। सर आपकी लेक्चर बहुत ही अच्छी थी, और कभी कभी तो हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और कभी कभी इंग्लिश मीडियम वाले में बैठ जाते हैं, तो लगता है कि हम लोग क्या सुन रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आता सर। लेकिन जब हम लोगों ने लेक्चर सुना तो ऐसा फील हुआ कि हिंदी और इंग्लिश को मतलब सारी चीज़ें आपकी बातें समझ में आ रही थी सर। सर मेरा क्वेश्चन
आशीष ने तो पूछ लिया, बट इसी में थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ाना है सर। आपने फ्रीडम ऑफ चॉइसेस की बात की, जिसमें आपने कहा कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के पीछे हमारी मजबूरी भी तो हो सकती है ना सर, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ और मेरा एडमिशन जो था इकोनॉमिक्स में हो चुका था। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहती थी, बट मेरे साथ दिक्कत क्या था कि मैं हिंदी मीडियम से थी और मेरा मैथमेटिक्स नहीं था। मुझे वहां से बैकआउट करके और फिर पॉलिटिकल साइंस में आना पड़ा। जी वसुंधरा, ये एक ऐसी समस्या है जिससे हम सबको दो चार होना पड़ता है, और शुरुआत में हम लोग थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करते हैं बिकॉज बिकॉज सार्थ इज वेरी मच ऑन योर फेस. His language will put fingers in the eyes of the audience and say, look, here you are telling a lie, जो कि सुनने में हमें बहुत बुरा लगेगा. अगर सार्त्र यहां पर होते, और हम लोग फिलॉसफी में बहुत सारे थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हालांकि डेकार्ट वो बात नहीं कहेंगे, लेकिन डेकार्ट को पढ़ के मैं अंदाजा लगाऊंगा कि अगर डेकार्ट होते, यहां पे बैठे होते, तो वो क्या उत्तर देते. उसी तरह से शायद सार्त्र यहां पर होते तो वो कहते, अगर आपने इकोनॉमिक्स छोड़ के पॉलिटिकल साइंस लिया, चाहे जिस भी वजह से लिया हो, आपने एक चुनाव किया और आपने स्वतंत्र चुनाव किया, क्योंकि आपके पास विकल्प फिर भी मौजूद थे वसुंधरा. और शायद ये विकल्प बनाने की प्रक्रिया केवल उस समय की नहीं थी जब आपने एडमिशन लिया. ये शायद आपकी पढ़ाई की शुरुआत से ही चली आ रही थी, राइट? तो हमने देखा, और इसके बाद भी आप खुद में सुधार कर सकते थे. तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी चॉइसेस बिल्कुल एपरेंट होती हैं, विजिबल होती हैं, कई बार ढके छुपे हुए रूप में होती हैं, सटल फॉर्म में होती हैं. तो चुनाव का अधिकार अगर आपके पास नहीं है, आपके पास आगे भी चुनाव का अधिकार हो सकता है. हो सकता है आप एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक और ग्रेजुएशन करना चाहें. हो सकता है आप एमए में इकोनॉमिक्स लेना चाहें, लेकिन अगर आप ऐसी चॉइस करते हो तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. अब आपको पता है इंग्लिश के बिना आप नहीं कर पाओगे. आर यू विलिंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? If you are willing to take responsibility, Sarth might be standing on your side and say, yes, you have the free choice and you are responsible. अब आगे आपकी प्रशंसा हो, आपकी आलोचना हो, कम से कम आपको एक प्रकार का सुख होगा कि मैंने अपना निर्णय स्वयं लिया. एक नॉवेल है, शायद आपने पढ़ी हो या आप पढ़ना चाहो, धर्मवीर भारती की. उसका नाम था गुनाहों का देवता. जरूर पढ़िएगा. हमें खूब सारी किताबें पढ़नी चाहिए, चाहे वो कोर्स की हो या ना हो, क्योंकि हमें हमारा दृष्टिकोण विकसित करने में वो सहायता देती हैं. तो उसका जो नायक है, जिसका नाम है चंदर, वो कहता है, मैं दूसरे की बात तो जैसी की तैसी मान लूं और वो मुझसे खुश भी हो जाएगा, लेकिन बाद में वो सोचेगा, क्या ये व्यक्ति जिसको मैंने सहारा दिया वो एक ह्यूमन था, या सॉरी फॉर माय वर्ड्स, और वॉज he or she a mere dog? क्योंकि ह्यूमन होने की खासियत होती है कि हम अपने निर्णय ले सकते हैं और सोच समझ के ले सकते हैं. हो सकता है हम लोग कभी कभी जस्टिफाई करें कि हमारे निर्णय हमारे कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन साथ कहेंगे आपका हर निर्णय जाने अनजाने रूप में आपके द्वारा ही लिया जाता है, और उसके लिए हमें जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि भविष्य में उसमें सुधार करने की जरूरत है. यही आपके मानव अस्तित्व को वास्तव में सार्थकता प्रदान करता है. सार्थकता का सच में कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होता, एंड आई फाइंड इट अ वेरी अट्रैक्टिव टर्म. आई होप आई एम क्लियर वसुंधरा. थैंक यू सर. मूलतः शास्त्र कोशिश ये करता है कि व्यक्ति को अपनी क्षमता, अपने दायित्व का बोध हो. व्यक्ति अपने को कमजोर समझे और वो ये कहे कि व्यवस्था ने मुझे ऐसा बना दिया, और अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के पीछे हट जाए. वास्तव में शास्त्र वही क्षमता व्यक्ति के अंदर डालना चाहता है. यू आर द डूअर एंड यू हैव टू टेक एक्शन. यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी एक्शन. You cannot say that I did this thing under this constraint. That freedom is not to you. Being a human, you have to take responsibility.
Yes, Ashish wants to. Sir, one more question asks, if you permit, then can I take his question? Of course, ma'am. Please, Ashish, go ahead. यस सर, थैंक यू सर. सर मेरा एक क्वेश्चन है. मैं पढ़ रहा था फ्रेडरिक निश्चे को, तो उन्होंने कहा है गॉड इज डेड. तो एक्चुअली वो मुझे जहां तक समझ में आया वो क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने कहा है. बट आप प्लीज इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन व्हाट कंटेक्स्ट एक्चुअली फ्रेडरिक निश्चे वांटेड टू टेल दैट गॉड इज डेड. इफ जब भी हम ईश्वर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ जुड़ी हुई पैकेज के फॉर्म में एक और चीज हमारे पास आती है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल मॉरल कॉस्मिक ऑर्डर के नाम से जानते हैं. अगर आप वेदों को देखोगे तो हम इसको रित के नाम से जानते हैं, बौद्ध को आप देखेंगे तो कम्म के नाम से जानते हैं, न्याय अदृष्ट के नाम से जानते हैं, मीमांसा अपूर्व के नाम से जानते हैं. सामान्य तौर पे हम इसको फेट और डेस्टिनी कह करके बुलाते हैं, हाथों की लकीरों के रूप में जानते हैं. क्रिश्चियनिटी में हम इसको प्रोविडेंस के रूप में जानते हैं, यानी सब चीजें पहले से निर्धारित है. समस्या यह है कि अगर सब कुछ पहले से निर्धारित हो तो उससे हमें एक लाभ भी होगा और एक नुकसान भी होगा. लाभ ये होगा कि हम चॉइस मेकिंग से बच जाते हैं, है ना. अगर हर चीज पहले से निर्धारित है तो ना तो आप मुझे ब्लेम कर पाओगे, ना मुझे अप्रिशिएट कर पाओगे. लेकिन ये एक बड़ी ही खतरनाक परिस्थिति है, क्योंकि तब मैं एक लंबा सा चाकू लेकर के, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं उसको चाकू मार के कह सकता हूं कि आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पहले से निर्धारित था. तो इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ एस्केपिज्म. ये पलायनवाद को बढ़ावा देता है. इस तरह से हम अपने चुनाव की सामर्थ्य से बच जाते हैं या हमें ब्रेन वॉश कर दिया जाता है. मैंने आपसे पहले भी कहा कि मार्क्स और सार्त्र दोनों हमें बड़े आकर्षित करते हैं और दोनों एंटी रिलीजन जाते हैं. और जब वो एंटी रिलीजन जाते हैं, जब वो गॉड को निगेट करते हैं, तो उनका केवल एक अभिप्राय होता है. आप इस बात को जानिए, आप इस बात को समझिए कि देयर इज नो ट्रांसेंडेंटल वर्ड विच इज कंट्रोलिंग यू लाइक अ पपेट. It is your aversion to your choice. It is your ignorance of your power which makes you a puppet in the hand of the religion, the God, or the authority. Once you can break the shackles of religion or authority, that is your rebirth and that is your real birth. याद कीजिए, जब जहां जहां रूसो कहते हैं तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मैन इज बॉर्न फ्री दो एवरीवेयर ही इज इन चेन्स. ये कौन सी चेन्स हैं? ये प्रोविडेंस की, फेट की, डेस्टिनी की, प्रारब्ध की, कर्मवाद की चेन्स हैं. ये वही गॉड है या इंस्टीट्यूशनल रिलीजन है जो इंस्टीट्यूशन को इंडिविजुअल के ऊपर इंपोज कर देती है. अगर गॉड इज डेड, देन यू आर ऑन योर ओन. इफ यू आर ऑन योर ओन, then you have free choice, and if you have free choice, then your human existence has no other word for me, sarthakta. I hope I'm clear, Ashish. Thank you, sir. Now it is clear. Thank you so much. Thank you so much, sir. It was a wonderful evening. And I think after this lecture that we should keep organizing not only lecture, open dialogue with students. They have so many questions. And when we talk about philosophy, it appears quite complex. So where that philosophy is related to our life, our own experiences. And if we can organize open dialogue, where they can ask their general question and then they can understand the philosophical perspective, that would be wonderful. So now before inviting Manisha, Dr. Manisha Mishra for vote of thanks, we have also Professor Renu Srivastava ma'am from VKM. So if you want to add some point, B, she is the head of the Department of Political Science, VKM. B, please unmute yourself. Yes. थैंक यू डॉक्टर प्रीति. आज मैंने सुनने का आनंद लिया और डॉक्टर शुक्ला ने जिस तरीके से बताया वो बहुत ही अच्छा था. तो इसके कॉम्प्लेक्सिटी को के कहने ही क्या है, लेकिन बच्चों ने इंटरेक्ट किया, इसका मतलब आपने बिल्कुल उनको वहां पर अटैक किया और टच किया.
तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा था, इसलिए कि हम इससे ज्यादा इसे नहीं समझा सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रीति से हमेशा ये स्टैंड लेती हूँ कि ये सारे जो टॉपिक्स है हम लोगों को एनालिटिकली सचमुच में जो फ्रेमवर्क दिमाग में दे दिया गया है उसको इरेशनैलिटी को डिस्क्राइब करना, है ना, और नथिंगनेस को डिस्क्राइब करना, ये शायद इस जनरेशन को बता दिया जाए तो जो टाइप कास्ट हम हो गए हैं वो कैसे नहीं होना चाहिए उसका ये बड़ा स्कोप देता है। और जो साइंटिफिक रैशनलिज्म ने हम लोगों को बना दिया था, डेविड ईस्टन की थियरी के बियॉन्ड हम कुछ नहीं सोच पाते थे, उसने एक जो स्कोप और एक लाइट ये देते हैं, वो बच्चों को मैं समझती हूँ जिस क्रॉस रोड पे वो सक्सेस को भी फेलियर्स को भी जीते हैं, जस्टिफाई करने लगते हैं बड़ों को खुश करने के लिए, एक्सेप्ट एंड गो अहेड, मार्च फॉरवर्ड, द गॉड इज डेड, ये आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। कीप ऑन डूइंग द मिस्टेक्स, रेक्टिफाइंग एंड सक्सीड, है ना। तो ये शायद एग्जिस्टेंशियलिज्म है कि क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगी, गिरते हैं सवार ही है कि हम गिरते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो जो फ्रेमवर्क हमारी बना दी गई है हमें उससे बाहर निकलना होगा। हाउसोएवर scientific rationality and intellectualism we have been taught and conditioned about. Thank you very much. कुछ इस पे कहना नहीं है. I enjoyed your lecture and thank you Dr. Shukla and Dr. Preeti and everybody around. Thank you, Di. So now we are reaching to conclusion. Thank you, sir. So much. Thank you so much, sir. Once again, now for formal, one more thanks is to Dr. Archana Tripathi, because it was she who told me that I should invite you, and I must thank her. Now for formal vote of thanks, I'd like to invite Dr. Manisha Mishra from Department of Political Science, Basanta College. Thank you, Preeti ma'am. Am I audible? Good evening to all our honorable speaker, teachers, and my dear participants and students. It is a matter of honor for me to convey the formal vote of thanks on behalf of the Department of Political Science, Vasanta College for Women, Rajghat, Varanasi. First of all, I express my sincere thanks to our principal madam, Professor Alka Singh, for her constant support for such type of programs. I express my deep gratitude to Dr. Prashant Shukla sir for such an wonderful, thought-provoking, inspiring and informative lecture, and specifically you have discussed everything, the complex philosophies in such a lucid manner, in a student-centric approach. That is really the most important part of this session. I thank you from the bottom of my heart. I would also like to thank Dr. Preeti Singh, ma'am, Head Department of Political Science. You have made the best arrangement of this program. You have connected us with such a wonderful speaker, and we will like to continue such type of discussions in a future also. I would also thank Dr. Punita Pathak for her constant support and involvement. I express my gratitude to Professor Renu Srivastava, madam, from Vasant Kanya Mahavidyalaya, our sister institute, and Dr. Archana Tripathi, madam, because you have suggested us for calling sir, and our students are benefited due to your suggestion. And I also am very much thankful to all my students and participants, because your participation, your interactions, your questions that make the lecture interactive, that multi-log about which Satre is talking about, that everybody is keeping his own perspective, that makes any event successful. Thank you, everyone. Over to you, Preeti. Thank you, sir. Thank you so much. And we'll keep troubling you now. Okay, thank you so much, sir. So now I think we can close it.